Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Test appraisal is our lecture number 24. It's the topic number 5.3 and it's from the chapter number 5. Topic for discussion for this lecture are: what is test appraisal system, what is the concept of appraisal system, assembling the classroom test, important test characteristics, item analysis and its benefits, item analysis for norm reference test, item analysis for criterion reference test, establishing test validity and reliability, preparing test item bank. According to Newstorm, it is the process of evaluating the performance of students, sharing that information with them and searching for ways to improve their performance. Test appraisal is a step where the institution's management finds out how effective it has been at conduction and evaluation of students. A test performance appraisal is a process of evaluating a student's performance of a test in terms of its placement and promotion. Test appraisal is the step where the institution management finds out how effective it has been at conduction and evaluation of students. Test appraisal is a judgment or assessment of the value of something, especially a formal one, while evaluation is an assessment such as an annual personal performance review, such as the basis for a increment, a bonus, a summary, particular, etc., etc. What are the basic objectives of test appraisal? And for the students, what is test appraisal means? Concrete and tangible particulars about their work, assessment of the performance. स्टूडेंट्स के लिए उनका जो काम, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके लिए कंक्रीट किस्म की जो उन्होंने काम किया है उसके लिए उनकी अप्रेजल, और इंस्टीट्यूशन के लिए मेजरिंग द एफिशिएंसी, मेंटेनिंग कंट्रोल, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि उन्होंने कितना एफिशिएंटली एक स्टूडेंट को एजुकेट किया है, उसकी आउटकम्स और इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए उन्होंने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कितना बेहतर बनाया है और इदारे के ऊपर उनका कंट्रोल कैसा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए टेस्ट अप्रेजल सिस्टम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं. व्हाट आर एम्स ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स? पर्सनल डेवलपमेंट, एक स्टूडेंट की पर्सनल डेवलपमेंट करना, उसकी पर्सनल ग्रूमिंग करना, उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन करना, उसकी सेल्फ इस्टीम, उसकी सेल्फ इनकरेजमेंट और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्हांस करना, इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क और उसको एक्टिविटीज़ के साथ अपने इंस्टीट्यूशन में मौजूद टीचर्स और डायरेक्टर्स के साथ मिल के काम करने का आदी बनाना. And for the institution, aims are mutual goals of the student, teachers and the organization. इसके अंदर students, teachers और head of institutions और उसके साथ नॉन टीचिंग स्टाफ के भी सारे गोल्स और एम्स शामिल होते हैं, उनको फुलफिल करना. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगाना कि एक साल के अरसे में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए हैं, उनमें से कितने पास आउट हुए हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसे की जाएगी, उन्हें प्रमोट कैसे किया जाएगा. इंक्रीज हार्मनी एंड इन्हांस इफेक्टिवनेस, और इससे इदारे में मौजूद तमाम डिपार्टमेंट्स की हार्मनी और मज़ीद इफ़ेक्टिव उनको किस तरह बनाया जा सकता है, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए टेस्ट अप्रेजल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. Now, first of all, assembling the test. I think we are already discussing assembling the test process in a very detailed way. But for the test appraisal system, उसके जो steps हैं उसमें सबसे पहले assembling the test, जिसमें हम आइटम्स को इंडेक्सेस कार्ड्स के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको डबल चेक करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं, और डबल चेक आइटम्स को करने के बाद उनमें देखा जाता है कि क्या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को फॉलो किया गया है, क्या जो आइटम्स हैं उनमें डिज़ायर्ड इंटरप्रिटेशंस हुई हैं. डिफ़िकल्टी लेवल एक एक आइटम का चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या टेस्ट में कोई आइटम्स ओवरलैप तो नहीं की गई. डिस्क्रिमिनेशन पावर्स को चेक किया जाता है और कंप्लीट आइटम एनालिसिस के बाद
टेस्ट में एक एक आइटम को शामिल किया जाता है. Now, what are the basic desirable characteristics for a test? As you know, for the start from assessment and evaluation, we must consider the following points while testing or going to develop a test appraisal. And those are validity, reliability, utility, practicality, and discrimination. First of all, what is validity? Validity, a test is valid if it measures what we want it to measure and nothing else. Validity is a more test dependent concept, but reliability is a purely statistical parameter. We are having basically four types of validities: content validity, concurrent validity, construct validity, and predictive validity. And these all types of validity we already discussed in a very detailed way in our characteristics of our test chapter. Now, what are the basic factors which affect the validity? If directions are not clear and simple, that will affect the validity of the test. Difficulty level, if test is very easy or test is very difficult, it means that would affect the test validity. Structure of the items, if items of the test are poorly constructed or ambiguous items will contribute to invalidity. Arrangement of items and correct responding, and starting with the easiest item and ending with the difficult ones is a normal setting of a paper. But if arrangement of item is different and arranging item responses randomly not based on an identical pattern, so it means that test would be not valid. Then the second one is reliability. A test is reliable if we get the same result repeatedly. It means that consistent results of a test means that test is very much reliable, and unreliable test on the other hand, one score might fluctuate from one administration to the other. Several ways are there to check the reliability, but many ways are like 5 or 6 ways are there to check the reliability of the test, but the famous ones are test retest reliability, split half, and parallel forms या equivalent form reliability, Tudor-Richardson reliability. What are the factors which are almost dependent, and which method should we use mostly? It depends on the function of the test. The test retest method is appropriate when the consistency of scores, a particular time interval, stability of test scores over time is important. And the parallel form or equivalent form method is desirable when the consistency of scores over different forms is of importance, when the go-togetherness of the items of a test is of significance. The internal consistency, split half, and Tudor-Richardson will be the most appropriate methods for the future. What are the basic factors which influence the reliability? To have a reliability estimate, one or two sets of scores should be obtained from the same group of testees. Thus, two factors contribute to test reliability, and the testees and the test itself. Then there is utility. Utility means that test could be used again and again, and it can be applied on many ways. Then practicality. Practicality means that test should be Practicality refers to the ease of administration and the ease of the scoring of a test. And discrimination means that it should be according to discrimination power, and the test discrimination factor should be already measured. Issues in appraisal system. What is basically appraisal design is? First of all, what methods? When to evaluate? What to evaluate? Whose performance is going to evaluate? Who are the raters? What problem is there? And how to solve that problem? Advantages of test appraisal. Test appraisal provides a record of performance over a period of time.
अगर आप बार बार किसी टेस्ट को चेक करना चाहें और उसमें अप्रेजल सिस्टम देखना चाहें कि जो टेस्ट या जो पेपर लिए गए थे उनमें स्टूडेंट की प्लेसमेंट क्या हुई और वो प्रमोट कैसे हुए, और इसके लिए आपको जो अप्रेजल सिस्टम है वो आपको रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस जो है वो टाइम पीरियड के दौरान जो है वो अवेलेबल करवाता है। कैन बी मोटिवेशनल विद द सपोर्ट ऑफ अ गुड रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन, provide an opportunity for a manager to meet and discuss performances, provide an opportunity for an employee to discuss issues and to clarify expectations, and provide the employee with feedback about their performances. These are basically five advantages of test appraisal, जिसमें आप अपने स्टूडेंट को उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पे रिवॉर्ड दे सकते हैं, उसकी वजह से उसको अपनी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है, वो अपने इश्यूज को क्लैरिफाई कर सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट क्यों नहीं कर सकते, अपने इश्यूज को टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको अपना फीडबैक मिलेगा, उन्हें ये पता चलेगा कि उन्होंने थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द टेन्योर कैसा परफॉर्म किया है। What are the basically disadvantages of performance test appraisal system? If not done appropriately, can be a negative experience. अगर आप किसी एक स्टेप को भी मिस करते हैं, अगर आप टेस्ट की असेंबली के दौरान वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी या किसी भी करेक्टरिस्टिक को मिस करते हैं, उसके साथ आप टेस्ट की जो ब्लूप्रिंट है या जिसको हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है उसको मिस करते हैं, आइटम्स को क्लियरली चेक किए बगैर और नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ पेपर में शामिल करते हैं, तो इससे आपका सारा एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाएगा। सब्जेक्ट टू रेटर एरर एंड बाइसिस, इसमें ये होगा कि जो बाइसिस हैं, पर्सनल प्रेजुडिसेस हैं, उनकी वजह से पेपर की चेकिंग में एरर आ जाएगा और उसमें जो तासुब पसंदी है उसका एलिमेंट जो है वो शामिल हो जाएगा। इफ़ नॉट डन राइट कैन बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर चैनल टेस्ट को एडमिनिस्टर नहीं कर पाते, उसमें टेस्ट असेंबलिंग से लेके टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन और टेस्ट की स्कोरिंग तक का प्रोसीजर शामिल है, अगर आप वो सब प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर पाते, इट मीन्स यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, उसका फ़ायदा आपको उतना नहीं है क्योंकि आपको उसके रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं मिलेंगे। कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर ऑल इन्वॉल्व। टेस्ट अप्रेजल सिस्टम उन लोगों के लिए स्ट्रेसफुल होता है जो लोग इसमें शामिल हो, लेकिन जो टेस्ट है उसको मुकम्मल तरीके से अप्लाई ना किया जाए और उसकी वजह से उसके फंक्शंस और उन चीज़ों में या रिजल्ट्स में किसी किस्म की एम्बिग्विटी जो है वो नज़र आए, तो इस सूरत में ये स्ट्रेसफुल प्रोसीजर हो सकता है फॉर टीचर्स ऑल्सो। As we all know that test appraisal is step where the institution's management find out how effective it has been at evaluation of students. Hence, if the test conducted by institution is highly reliable, producing consistent results and valid measure exactly what it's supposed to measure, when their evaluation process is indeed very efficient and excellent. And as we know that test appraisal is a process of conduction, sharing that information with them and searching for ways to improve their performance. If the value of central tendencies are positive and most of them are above average, it shows that the conduction of test has been up to the mark and it provides positive feedback to the students. That's why जब हम टेस्ट अप्रेजल की बात करते हैं तो हम उसकी जो टेस्ट की क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी को चेक करते हैं। एंड व्हाई शुड वी गिव इम्पोर्टेंस टू दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली? These are not only characteristics of a test, rather these are of measurement. Test is just a tool like assignment, like a quiz, like a project, or like a midterm exam for the measurement of student performance. Now, measurement is not only confined to education or test or the students. Measurement is the assignment of a number to a characteristic of an object or event which can be compared with other objects or events. The scope and application of measurement are dependent on the context and the discipline. Now the next is item analysis.
Item analysis is a statistical technique which is used for selecting and rejecting the item of the test on the basis of their difficulty value and discrimination power. And this all we discussed in our last lecture. The procedure used to judge the quality of an item, it is the process of looking at item response of the test, जिसपे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि जो भी हमने चीज़ या जो आइटम हम पेपर में शामिल करना चाह रहे हैं, क्या वो हाई स्कोरर्स और लो अचीवर्स के दरमियान किसी डिस्टिंक्शन को लेकर चलती है या नहीं, या सबको इक्वल कंसीडर करती है, और क्या आइटम्स ऐसी हैं जिसको सब स्टूडेंट्स क्लास के जो हैं वो सॉल्व कर सकें. व्हाट आर द पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस? Item analysis are with the purpose that it select बेस्ट क्वेश्चंस. इसमें आप अपने बेस्ट क्वेश्चंस चूज करते हैं जिसका रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव मिला होता है. आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल कंटेंट डिफेक्ट इन द क्वेश्चन. अगर आपको क्वेश्चन में कोई डिफेक्ट मिलता है तो आप उसे निकाल के एक अच्छा स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन को दे सकते हैं. डिटेक्ट लर्निंग डिफिकल्टीज. आइटम एनालिसिस से हम स्टूडेंट की लर्निंग डिफिकल्टीज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि डिफिकल्टी और डिस्क्रिमिनेशन दोनों का अंदाज़ा लगाया जाता है. इट कैन हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द वीकनेसेस. Interpretation of students' performances, control the quality of a test, evaluate the students, understand the behavior of testing items. Now, what are the benefits of item analysis? Gauge the quality or worth of a test, increase skills of quality test construction, planning future activities of performance check, basis for discussing test results, improving the teaching techniques and methods. ज़ाहिर है जब हम आइटम एनालिसिस करते हैं तो हमें किसी आइटम की वर्थ का अंदाज़ा होता है, हमें उसकी क्वालिटी अपने टेस्ट की का अंदाज़ा होता है, इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट ने किया है क्या वो परफॉर्मेंस उसके फ्यूचर के लिए इफेक्टिव होगी. इससे हम स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को स्टूडेंट्स के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ आसानी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और थ्रू आइटम एनालिसिस टीचर अपने टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं. टेस्ट अप्रेजल बेसिकली एक कंप्लीट सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से एक स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको बहुत क्लियरली एक क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखा जा सकता है. एज यू ऑल नो कि जो हमारा प्रोसेस है इसका टेस्ट अप्रेजल का प्रोसेस इंतहाई डिटेल्ड प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एक चीज़ जो है उसको बहुत बारीक बीनी से देखा जाता है, उसके छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को नज़रों में रखा जाता है. टेस्ट का पर्पस, टेस्ट क्यों असेंबल किया जा रहा है, टेस्ट को किस तरह से असेंबल किया जा रहा है, उस टेस्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उन करेक्टरिस्टिक्स के बाद एक एक आइटम का एनालिसिस किया जाता है. हर आइटम को परखने के बाद टेस्ट में शामिल किया जाता है, और जब टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो उसके स्कोर्स को भी चेक किया जाता है कि उसका स्कोरिंग का प्रोसीजर क्या है और स्कोरिंग प्रोसीजर को कैसे आगे लेके जाया जा रहा है. और उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन अपने इस पूरे अप्रेजल सिस्टम को कंप्लीट करता है. दिस इज़ अ कंप्लीट राउंड जो कि आपके टेस्ट की प्लानिंग से लेके आपके टेस्ट के कंडक्ट होने तक एक प्रोसीजर है. और ये एक प्रोसीजर तब स्टार्ट होता है जब फॉर द वेरी फर्स्ट डे एक स्टूडेंट एक क्लास में बैठता है, क्योंकि टीचर का जो क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप होता है उसमें उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपने सब्जेक्ट के पूरे ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपना सब्जेक्ट अपने स्टूडेंट तक पहुंचाए और स्टूडेंट से आउटकम्स ले, ताकि एक बच्चा जो चीज़ें लर्न कर रहा है उनके बिहाफ पे अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके. और बच्चे की परफॉर्मेंस आपके अप्रेजल सिस्टम से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि अगर एक बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा इट मीन्स कि आपका सेटअप, आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो पॉजिटिव है और वो बच्चे की ग्रूमिंग कर रहा है. लेकिन अगर आप 100 में से 70% बच्चों को पुअर रिजल्ट देते हैं इट मीन्स आपको अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम चेक करने की ज़रूरत है. परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो है, ये जो टेस्ट अप्रेजल सिस्टम है, एक्चुअली ये इंस्टीट्यूशन को इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करने का मौका देता है कि वो डे 1 से लेके समेटिव असेसमेंट के ख़त्म होने के दिन तक अपने पूरे सेटअप को एक प्रोसीजर के साथ रीचेक करे, ताकि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सके.
थैंक यू वेरी मच। आज के टॉपिक के साथ हमारा जो 5th चैप्टर है दैट्स गोइंग टू बी एंड, और कमिंग वीक में इंशाल्लाह हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी इन माई गूगल क्लासरूम, यू कैन आस्क मी ऑन माई माई यूट्यूब चैनल, एंड यू कैन आस्क मी थ्रू ईमेल टू। और कोई भी इश्यूज हों रिलेटेड टू दैट आप अपने मेन टीचर के ज़रिए भी मुझे कन्वे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड इसके एंड पे जो आपका ये पूरा लेक्चर है मैंने रेफरेंसेस दिए हैं। फर्दर अगर आपको कोई चीज़ चेक करना हो तो आप उन रेफरेंसेस को एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर किया करें। थैंक यू।